علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں آپ کا میزبان وقاص کوری۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسی شخصیات جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو ہر سچویشن کو، ہر مشکل وقت کو جو ہے ٹیکل کر سکتی ہیں اور وہ اپنا راستہ خود بناتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے شوبز سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اپنے کریئر کا آغاز کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے فلاحی کاموں میں بھی اپنا ایک نام بنایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رابی پیرزادہ۔ رابی، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز، جیسا کہ میں آپ سے انٹرویو کرنے سے پہلے سے ہی آپ کو جانتا ہوں، تو میں نے دیکھا آپ نے سنگنگ کی، کچھ شو ہوسٹ کیے، اس کے بعد آپ نے فلاحی جو ہے وہ کام شروع کی اور ایک روحانیت کا ایک عنصر بھی آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ السلام علیکم۔ اور پہلے تو آپ کا پروگرام بہت مشہور ہے، کیونکہ مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں پروگرام۔ بہت شکریہ۔ تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کسی پروگرام کا اتنا مشہور ہونا، اٹس ویری کانگریچولیشن ٹو یور پروڈیوسر۔ میں ان کو جانتی ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑا پرانا جانتی ہوں انہیں میں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو ہمارا سے پتہ ہے، کہتے ہیں نا لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ If I look at myself 5 years back, I could not even imagine کہ میں شاید اردو میں کچھ بھی لکھوں۔ تو اب میں قرآن بھی لکھتی ہوں، کل 28واں سپارہ اللہ نے ختم کروایا ہے، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ رہی ہوں، قرآن کلاسز کراتی ہوں، لاکھوں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو روز ہی کرا رہی ہوں، 2 دن کا پچھلے گیپ آیا کیونکہ کچھ فلاحی کام جیسے آپ نے کہا۔ تو یہ پتہ ہے اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے نا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو شاید اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی کوڈ ناٹ امیجن مائی سیلف ڈوئنگ آل دیٹ جو میں اب کر رہی ہوں، لیکن میرے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ اینڈ ہیپی ود مائی لائف، کیونکہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس زندگی میں میری وجہ سے نہیں لے کر آئے، بہت سارے لوگوں کی وجہ سے لے کر آئے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید اللہ کو میں اچھی لگتی ہوں یا اللہ نے میرے سے کوئی کام لینا ہے، لیکن نہیں، ایسے بہت سارے لوگ تھے، بچے تھے، ایک جنریشن تھی جس کو میری ضرورت تھی۔ اب اللہ اتنے بچوں کو مفت تعلیم دلوا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے نا، بس وسیلہ میں اور رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن سکولز ہیں ہمارے، 3 سکولز ہیں، اس میں بچوں کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، ایون ان کے گھر کا راشن۔ آپ بھائی کسی دن نا پروگرام وہاں پہ کیجیے گا، ادھر آپ کو بچے بتائیں گے کہ 3 دن سے ہمیں جب ویکینڈ ہوتا ہے تو ہمیں کبھی کبھار کھانا بھی نہیں ملتا، تو ہمیں اسکول آ کے کھانا ملتا ہے۔ پھر وہی اسکول جو ہیں وہ شام کے وقت جو ہے وہ ایک سارٹ آف آرفنیج تو نہیں اسے کہیں گے، شیلٹر ہومز بن جاتے ہیں۔ بہت سارے بوڑھے لوگ، بہت ساری ایسی خواتین، بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کے گھر بن جاتے ہیں وہی اسکولس، کیونکہ شام کو اتنا کرایہ دیتی ہوں میں بلڈنگس کا، اور میری تو فاؤنڈیشن فنڈ بیسڈ بھی نہیں ہے، میں اپنے آرٹ منی پہ چلاتی ہوں، اب اپنے برانڈ پہ چلا رہی ہوں۔ تو وہ بیچارے بچے اور وہ جو عورتیں وہاں پہ رہتی ہیں، ان کا کھانا پھر میرے گھر سے جاتا ہے، تو وہ ایک اور اللہ کی طرف سے برکت۔ تو اٹ از آل Allah's planning. I never planned anything. اگر شاید میری پلاننگ میں ہوتی تو میری زندگی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کس راستے کی طرف چلا رہا ہے، تو اللہ نے جس راستے پہ چلایا I'm pretty happy and satisfied۔ آج جو رابی پیرزادہ ہمارے سامنے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو رابی پیرزادہ پہلے تھی، کیا اس وقت بھی آپ کو اپنے اندر ایک کوئی روحانیت کا عنصر جو ہے کہیں نہ کہیں پوشیدہ محسوس ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ نمازیں کبھی نہیں چھوڑی میں نے 7 سال کی عمر سے، چھوڑی ایز ان میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن نمازیں پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اور رمضان میں ساری پڑھتی تھی، اور ویسے یہ تھا کہ دن میں 1 یا 2 نمازیں ضرور پڑھتی تھی، کبھی نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ نے، آپ کو شوبز کی لائف کا پتہ ہے، کبھی بوائے فرینڈس نہیں بنائے، کبھی سگریٹ یا شراب نہیں کیا، کبھی ڈانس پارٹیز میں مجھے کبھی کسی نے، اور یہ باتیں میں بڑی کانفیڈنٹلی اس لیے بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوتی تو بہت سارے ایسے، آپ کو پتہ ہے بڑے ووکل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ ایسے بول رہی ہے، میں کبھی نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ ہیز سیوڈ می فرام سو مینی بیڈ تھنگس، الحمدللہ۔ لیکن ایز سچ روحانیت لائک قرآن لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اردو نہیں لکھ سکتی تھی، اردو آپ کو پتہ ہے گرامیرین بچوں۔ ایک جانب شوبز کو ہے وہ آپ نے چوز کیا،
जस्ट फॉर फर्स्ट स्टेप एज अ सिंगर, एज अ होस्ट, और दूसरी तरफ आपने जैसा भी बताया कि आप नमाजें भी कंटिन्यू रखी, चलें वो तो एक आपका एक इबादत हो गई, इसके अलावा आप उन चीज़ों से जैसे पार्टी से और किसी बॉयफ्रेंड से, ड्रिंक से, इन सब चीज़ों से भी दूर रही, तो ये किस तरह आपने उस दौर में कैसे मैनेज किया? अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में कभी कुछ सोच के कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि सांपों शेरों को रखने से लेकर जहाज उड़ाने से लेकर दुनिया का हर खतरनाक काम करने तक आई नेवर प्लान्ड एनीथिंग, मैं आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, और बट दिस काइंड ऑफ लाइफ वाज नॉट इवन इन माय फोकस, आई डिडंट नो। मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कभी कुरान से इतनी एफिलिएशन हो जाएगी मेरी, लेकिन लोगों का मैं उस वक्त भी ख्याल करती थी। वो मैं सवाब के लिए नहीं करती हूँ, वो मैं इसलिए करती हूँ कि मेरा दिल करता है कि हर इंसान तकलीफ से दूर हो जाए। और मैं जो बच्चों को भी पढ़ाती हूँ वो भी मैं ये सोचती हूँ कि अब जब अमीरों के बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो गरीबों के बच्चों को क्यों ना मिले। हाँ, मैं भी तो उधर पैदा हो सकती थी ना भाई। तो उस पे तो किसी का कोई जोर नहीं है। तो कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना तो आपके इख्तियार में नहीं होता। जैसे मेरा एक शेर है बड़ा अच्छा, मेरे शायर भी हैं आप? मैंने बड़ी शायरी की है। अच्छा। बड़ी मैं तो अक्सर शायरी करती रहती हूँ, बल्कि मेरी जितनी भी हमद और नाते आप देखेंगे वो सारी मैं खुद ही लिखती हूँ। कहते हैं, आए थे जब दुनिया में सांसें थी चल रही, फकत नाम ही ना था, जाने लगे दुनिया से सांसें निकल रही, फकत नाम ही बचा। कि जब हम दुनिया में पैदा होते हैं ना तो सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। द ओनली थिंग वी आर बोर्न विदाउट, जिसके हम बगैर पैदा होते हैं, वो था हमारा नाम। और जब हम मर जाते हैं तो हमारी हर चीज चली जाती है, हमारा नाम रह जाता है। वो राबी पीरजादा थी या वो आप थे। तो ये जो सफर है ना नाम का, इसके साथ क्या होना है ये सिर्फ मेरे अल्लाह को। ये थॉट्स आपको उस वक्त भी आती थी? नहीं उस वक्त आप एक जिस तरह एक दुनियावी इंसान होता है उसी तरह रूटीन की एक जिंदगी गुजार रही थी। बस मैंने कहा ना कि मुझे लोगों का एहसास, हाँ मन मौजी सी थी, लोगों का एहसास था, क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी ना, तो और पैसे बहुत ज्यादा थे। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं पीटीवी की यंगेस्ट प्रोड्यूसर भी रही हूँ। मैंने ड्रामास भी प्रोड्यूस किए, बड़े पैसे कमाए हुए मैंने प्रोग्राम्स भी प्रोड्यूस किए। करोड़ों कमा लिया था? करोड़ों कमा लिए थे। हाँ। फिर आप पे वो वक्त भी आया जब आपके पास चंद हजार भी रह गए थे? 1000 भी नहीं, चंद 100 रह गए थे। और उसके बाद कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देखें, अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। और अल्लाह कुरान पाक में ये कहता है कि अगर मैं किसी को बहुत कुछ दे रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं उससे बहुत खुश हूँ या मैंने जिंदगी को बड़ी अच्छी कर दी है। 2 लाइफ्स है ना, एक यहाँ की लाइफ है, एक वहां की लाइफ है। अच्छा, जब वैसे तो मैंने आर्ट ने मुझे गरीब नहीं होने दिया, वो कुछ महीनों का था, वो भी मैं जरा परेशान सी थी, डिप्रेस सी थी, अल्लाह को याद कर रही थी, सोच रही थी कि क्या करना है। लेकिन आर्ट, जो फाइन आर्ट्स है, जो मेरी पेंटिंग्स हैं, उन्होंने मुझे कभी गरीब नहीं होने दिया। और कैलीग्राफी मुझे नहीं आती थी, मुझे उर्दू नहीं लिखनी आती थी, तो मैंने कुरान क्या लिखना था, वो मुझे मक्का जाके खाना काबा के पास जाकर अल्लाह ने वो मुझे तोहफा दिया। वो तो मैं कहती हूँ कि अगर मिरेकल्स, मौजज़ात अगर दुनिया में देखें तो ये अल्लाह ने मेरे हाथों में मौजज़ा दिया, वो अल्लाह ने दिया। मेरे जो टीचर हैं सर जे आरिफ, जिन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई, वो भी मुझे ये कहते हैं, कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी अल्लाह की मर्जी के बगैर आपके ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है। अल्लाह कहता है कि मैं सिर्फ खुशियां देने वाला नहीं हूँ, मैं आपको दुख और तकलीफें भी मैं ही देता हूँ, और उसका कोई ना कोई रीजन होता है। शायद अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, आपकी जिंदगी में भी बड़ी परेशानियां, बड़े दुख आए होंगे, हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन आप उसका जब ओवरकम देखते हैं ना, जब वो चीज गुजर जाती है कि मुझे मिला क्या उससे, मुझे ईमान मिला। इफ यू आस्क राबी पीरजादा को क्या मिला, राबी पीरजादा को कुरान मिला। मैं आज कुरान पढ़ाती हूँ, मैं कुरान लिखती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ। आई एम सो एफिलिएटेड विद कुरान कि मैं अपनी जिंदगी में, मैं रात को भी सो रही होती हूँ ना तो कुरान मेरे दिमाग पे चल रहा होता है। तो मुझे माशाल्लाह ऐसा लगता है कि हम जब भी अपनी जिंदगी में किसी, आपको मैं एक और मजे की बात बताती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिले और उन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात, वो एक ही पैगंबर हैं, नबी हैं, जो कि अल्लाह ताला से मुलाकात जिनकी हुई और किसी की भी नहीं हुई। जब वो खत्म हो गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मैं तो तेरे से मिल चुका हूँ, लेकिन जब मेरे तेरे से दोबारा मिलने को दिल करेगा तो मैं कैसे मिलूं, दुनिया में मैं कैसे मिलूं तेरे से। तो अल्लाह से मुलाकात का तरीका ये है कि हम किसी गम गुसार, गम ज़दा इंसान के पास जाएं। अच्छा, मैं जब पहले वाली राबी थी ना, तो मैं एंटी डिप्रेशन, मेरा पता है क्या होता था, शॉपिंग। आई यूज्ड टू स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग।
ابھی بھی کرتی ہوں تھوڑی تھوڑی ٹائم. شاپنگ سے ویسے ایک خوشی ملتی ہے. خوشی ملتی ہے. لیکن اب وہ ایسے ہو گیا, اب جب میں زندگی میں پریشان ہوتی ہوں, مثال کے طور پہ FIA نے نا, میں نے ایک خاتون تھی, ایک لڑکی تھی بیچاری, وہ گھر پر آئی, گلے میں اس کے نشان, پھانسی لینے کی کوشش کر رہی تھی, 19 سال کی تھی, باپ کی شادی کرنا چاہتا تھا, اور جب وہ آئی تو اس کو 104 بخار تھا تقریباً, اس طرح کو تھا, بیچاری کو ڈینگی ہو گیا. پھر ہم نے اس کو علاج کرایا تو وہ رونا شروع کی, کہتی رابعہ آپی میں نے کہیں نہیں جانا, میں نے آپ کے پاس رہنا. میں نے کہا رہ لو بہن, ادھر تم اور بھی عورتیں رہ رہی ہیں. تو بھی انہوں نے میرے پہ کیس کر دیا. اس لڑکی نے پھر جا کے عدالت میں کہا کہ میں 21 سال کی ہوں اور میں بالغ ہوں اور میں یہاں پر اس کے حالات, اور وہ بڑی اچھی لڑکی ہے, ادھر ہی اوپر ہی ہوگی, ابھی کہیں پر کاری کرنے آئی ہوگی, نمازی, پرہیزی, حجاب کرتی ہے, بڑی محنت سے کام کرتی ہے ہمارے برانڈ میں. تو وہ پھر اس کے والد صاحب یا بھائی وہ شادی کرانا چاہتے, پیسے پوسے لیے ہوں گے, انہوں نے پھر کیس کیا, وہ کیس ریزالو ہوا. پھر FIA نے میرے پر کیس کر دیا, ڈیفیمیشن کیس, وچ واز ٹوٹلی رانگ. تو آج اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بھی ختم کروا دیا خود ہی. آج چلیں, آج تو خوشی کا دن ہے آپ کے لیے. میرا تو روز ہی خوشی کا دن ہوتا ہے. اچھا, میرے نا FIA سے مجھے بار بار لیٹرز آ رہے تھے گرفتاری کے. تو مجھے نا میرا وکیل ہے سپریم کورٹ کا, بہت بڑا وکیل ہے, مجھے کہتا ہے آپ نا اپنا فون بند کر دیں اور کہیں روپوش ہو جائے, اسلام آباد چلی جائے. اچھا, ہاں, بیکاز مشورہ دیا انہوں نے. نہیں, بیکاز وہ جو آ رہے تھے نا اس کے اوپر گرفتاری لکھا ہوا تھا. تو میں ہنس پڑی, میں نے کہا میرے بھائی میری بات سنو. اب میرے سے وکیل, میرے بھائی ناراض ہو گئے مجھ سے, کہتے یہ رابی سیریس نہیں لے رہی اپنے کیس کو. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں کسی انسان سے چھپ کے کیوں کہیں پر جاؤں جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا, بلکہ میں نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا. اللہ تو خوش ہوا ہوگا کہ وہ بچی جو ہے وہ یہاں پر اس کے حلال کما رہی ہے اور یہاں پہ خوش زندگی گزاری. اچھا, اس نے نا, میرے مینیجر گیا تھا اس وکیل کے پاس اور میرے عدیل بھائی گئے تھے, وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں میڈم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں نہیں کیس کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں. نہ ہوتے ہوتے میرے موبائل سے غلطی سے میسج ایک صاحب کو چلا گیا سائبر کرائم کے, غلطی سے, میں نے نہیں بھیجا. ان کا آ گیا کہ آپ میری بہن ہیں, آپ آئیں تو صحیح, آپ آفس سے چکر لگائیں. تو وہ حیا بائی رابی کریمز کا بھی مسئلہ تھا, تو میں نے, وہ فیک بن رہی تھی, تو میں چلی گئی ان کے پاس. تو انہوں نے سب کو بولا یہ میری بہن ہے. اچھا, اور ہی واز دا پرسن جنہوں نے 2020 میں مجھے سپورٹ کیا تھا, لیکن ہی نیور مینشن دیٹ. وہ اتنے, میں کہتی ہوں کہ میں انسان کا نا ظرف اس طرح سے جج کرتی ہوں, نیور مینشن دیٹ انسیڈنٹ. انہوں نے کہا رابی میری بہن ہے. انہوں نے پھر اس کو فون کیا, انہوں نے کہا یار اس نے تو اللہ کا ایک کام کیا, میں نے وہ ویڈیو دیکھی, اس میں خاندان کا نام بھی نہیں لیا ہوا, وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ شی سپورٹنگ دیٹ پرسن. تو وہ ٹھیک ہے, ڈیفیمیشن نہیں ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں. تو وہ اللہ نے ختم کرا دیا, بیٹھے بٹھائے نا میرے. اور پھر خیر انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر جاؤں گی, بھابھی سے ملوں گی, بچوں سے ملوں گی. تو پھر میں نے آ کر نا عدیل بھائی کو فون کیا, جو میرے بھائی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. میں نے کہا عدیل بھائی, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اور میرے وکیل کو ایسا لگا کہ جیسے میں نے بہت بڑی بات کر دی اور وہ مائنڈ کر گیا تھا. اور ہی سیٹ کہ وہ ذرا وکیل بھی بڑا تھا, سپریم کورٹ کا تھا, 20-30 وکیل تھے اس کے اندر. لیکن دیکھیں کہ آج وداؤٹ, میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں کہ نہ مجھے وہ صاحب یاد تھے کہ وہ بڑے اچھے انسان تھے, یہ یاد تھے, نہ ان کا نمبر مجھے یاد تھا. اللہ کی طرف سے وہ کیسے ان کو میسج گیا, دا وے ہی ہیلپ می, اونلی اللہ نوز. اس سارے واقعے کو بتانے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک مثال ہوں اللہ توکل کی. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا, اللہ کے اوپر توکل کریں, آئی ایم این ایگزامپل کہ اللہ پر چھوڑ. اور میں اتنے مزے سے سوتی ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آرام سے 10 گھنٹے سوتی ہوں, حالانکہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں رمضان کے علاوہ بھی, میں فجر کے اوپر بھی قرآن بھی پڑھتی ہوں رات کو. روز قرآن نہیں پڑھتی, تہجد اور فجر پڑھتی ہوں. لیکن اتنی پیاری مجھے نیند آتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چاہے یہ طوفان ہے, وہ طوفان ہے, یہ کیس ہو رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. آئی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اینی بڈی. اور اسی لیے میں اتنی وکل بھی ہو جاتی ہوں. یعنی کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا دنیاوی کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, تو پھر ایک تو خدا سے رجوع اور پھر اللہ پہ توکل. اللہ پورے قرآن پاک میں نا 2 چیزوں پہ بہت زور دیتا ہے, ایک صبر اور ایک شکر. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک میں اتنی صابر نہیں ہوں, میں امپلسو ہوں تھوڑی سی. صبر میرے اندر ابھی بھی کم ہے. میں کوشش کرتی ہوں, وہ تو نظر بھی آ رہا ہے. ہاں, میں کوشش, ابھی میں بڑی کنٹرولڈ ہو گئی ہوں. یہ بھائی ان سے پوچھے میں کس طرح کی بندی تھی. اچھا, تو صبر ابھی بھی, لیکن انسان ہوں نا میں, انسان تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, بشر با ہٹا دو تو شر ہے اس کے اندر. تو انسان کو اللہ نے بنائی ایسے ہے. تو لیکن شکر میں بڑا اللہ کا کرتی ہوں. آپ نے پیسوں کی بات کی, آپ یقین مانیں کہ جتنے پیسے میں شوبز میں کماتی تھی, بڑے کم لوگ کماتے تھے. ایک تو یہ کہ ان 20s if you are earning
इन करोड़. 2020 से पहले की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. बल्कि आप इसको छोड़ें 2000 आई थिंक, हाँ इन थोड़े से अर्सा पहले, कुछ 3-4 साल पहले, 2020 में तो आई क्विट शोबिज़ ना, तो मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं आई कुड बाय एनीथिंग. उसके बाद अब मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ब्रांड है ना हया बैराबी, उसमें इतना औरतों का रिस्क हलाल लग गया है कि अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ ना तो वो उतने ही पैसे बन जाते हैं. आप एक कॉन्सर्ट करो, आपको 8-10 लाख रुपए मिल रहे हैं. चलो लाहौर में करो 5-6 लाख रुपए मिल रहे हैं. अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं उस पैसों को कैलकुलेट करूं और जितना मेरी औरतों का रिस्क हलाल अल्लाह चला रहा है, तो ये पैसे उससे ज्यादा है. हया बाय राबी एक ऐसा ब्रांड है कि जिसके लिए हमारी क्रीम्स, हमारा स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है. इतने अभी FIA वालों ने आज ही उन्होंने वादा किया है कि बड़ी, मुझे बस ये दुख होता है, मुझे ये नहीं है किसी ने रिस्क हलाल कमाना है तो आके कमा ले मेरे साथ ज्वाइंट वेंचर करे. जाली क्रीमें बेच रहे हैं हया बाय राबी की, तो वो गलत कर रहे हैं. तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इस तरह ना करें, आप आ जाए, आप मेरे साथ काम करें, मैं आपको बना के देती हूँ. क्योंकि चीजें मैं अपने किचन में बनाती हूँ, ऑर्गेनिक चीजें जो है वो मेरे घर में बनती हैं. तो अब अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि हम उससे ज्यादा पैसे अब एक महीना लोग हमारी प्रोडक्ट्स के लिए वेट करते हैं, और उससे ज्यादा पैसे अल्लाह बनवा रहा है. मेरे तो नहीं बन रहे, उन औरतों के बन रहे, लेकिन कैलकुलेट करो तो हया बाय राबी ब्रांड तो मेरा है ना. बिल्कुल ठीक है. आप क्या समझती हैं कि इंसान की जिंदगी में ये जो अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को हिला देता है और फिर इंसान सीधे रास्ते पे या जो एक सही उसका पाथ है उस पे आ जाता है, तो वो धचका जो है वो भी जरूरी होता है. हुमायूं भाई हैं, जुनैद जमशेद के भाई. उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद जो थे ना वो थोड़े से, चूंकि मौलाना तारिक जमील साहब वगैरह, मेरे साथ तो आपने कोई आलिम कोई मौलाना नहीं देखे, मेरा तो मौलम सिर्फ कुरान है. तो कहते थे कि जब कोई पोल जो है वो कीचड़ में लगाओ ना तो वो बड़े आराम से निकल आता है, जब वो सीमेंट में लगाओ ना तो उसको बड़ी जोर से खींचना पड़ता है, साथ सीमेंट भी टूटता है, बड़ी जोर लगता है. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी जो फैमिली है वो सारी आलिमों की और पीरों की फैमिली है. आई वॉज द ओनली डिसग्रंटल पर्सन ओवर देयर. उस वक्त भी मेरे जो 2 चचा थे, उनमें से एक चचा मेरे बड़े ही नेक, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अर्ली अल्लाह ने उनको भी, तो उनके बच्चे भी बल्कि मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो 7-8 साल के बच्चे हैं उनके, 5-6 साल के. तो फौत हो गए कोरोना में लंदन में. माई फैमिली रिजाइड्स इन लंदन बेसिकली. अम्मा की कुछ यहाँ पर है, बट खाला फौत हो गई तो उनके भी भाई अमेरिका में. तो मैं बहन भाइयों में भी मैं पाकिस्तान में मैं ही रही, बाकी ब्रिटिश नेशनल गोरे. तो मुझे ज़रा शौक था इस तरह का, लेकिन मेरे घर वाले हमेशा ही कहते हैं कि जहाँ की मिट्टी होती है ना वहाँ पे वापस आ जाती है. तो काम मैं वही कर रही हूँ जो मेरे फोर फादर्स ने किया, लोगों को दीन की तरफ लाने का. लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो टाइम था ना, जो मैंने शोबिस का गुजारा, या जो मैंने सिंगिंग की, या मैंने पूरी दुनिया को देखा, या मैंने इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की, वो वक्त मेरे लिए ज़रूरी था. द वे आई डिफाइन कुरान एंड द वे आई डिफाइन दीन, हमारे जो मौलवी वगैरह हैं कुछ, वो ये कहते हैं कि जी दुनिया को तर्क कर दो. अल्लाह कुरान पाक में बार बार कहता है दुनिया भी मांगो भाई, तो क्यों दुनिया को तर्क करना है, दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज रॉन्ग. फिर हम, जैसे मैं थी, मैं अबाया वाली ख़वातीन से भाग जाती थी, या मैं बहुत ज़्यादा दीनदार ख़वातीन से भाग जाती थी. उसकी वजह ये है कि हम एक्सट्रीमिज़म पे चलते हैं. दीन में तो एक्सट्रीमिज़म है ही नहीं. एतदाल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. जो चीजें, जो मुहावरे हम अंग्रेजी में सुनते थे, ह्यूमन इज बॉर्न टू एयर, व्हाटएवर, दैट इज ऑल बीन एक्सप्लेन्ड इन कुरान वेरी वेल. तो मुझे जो वहाँ का मेरा एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर मेरा इस दुनिया में बड़ा काम आता है, इस दीन में बड़ा काम आता है. मैं ये नहीं कहती कि दुनिया को तर्क कर दो, मैं म्यूजिक भी सुनती हूँ. बहुत सारे उलमा, बहुत सारे लोग इस पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप पूरा कुरान देखें, वो रिदम में है, वो राइम्स में है. और जितने भी शायर हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी एक अल्लाह से अपनी लॉ लगी होती है. इसमें कोई बुराई नहीं. किस किस्म की चीज़ सुन रहे हो वो बुरी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने दीन को हवाले कर दिया. ऐसे लोग, कुरान से कोई नहीं हिला, अहादीस से हिल गए. कुरान में कोई फ़िरका नहीं. कुरान में बार बार कहते हैं फ़िरका करने वाला जहन्नमी है, फ़िरका वाला. हम जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके बड़े बड़े फ़िरके भी हैं. तो मैंने कुरान से हटके कोई चीज़ देखी नहीं. मैं ये नहीं कहती कि मैं अहादीस को नहीं मानती. कुरान में भी लिखा है कि नबी की ज़िंदगी से सीखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन
बेसिक तो कुरान है ना, जो चीज कुरान पाक में नहीं है। अब कहते हैं जी 72 फिरके होंगे और उनमें से जी एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा। कुरान पाक में तो लिखा हुआ फिरका वारिद करने वाला जन्नत में ही नहीं जाएगा, तो वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? तो मैं हर मुसलमान को जो तमाम सहाबा की इज्जत करे, जो अहले बैत की इज्जत करे, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, कुरान को आखिरी किताब माने, वो मेरे लिए मुसलमान है। अगेन, अब राबी पीरज़ादा फाउंडेशन डज नॉट वर्क फॉर मुसलमान ओनली, वो इंसान के लिए काम करती है। मुझे बड़े लोग कहते हैं ये जी हिंदू है, आप इसको ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस तरह से। मैंने कहा तो क्या हुआ? ये जी क्रिश्चियंस है तो क्या हुआ? अब मैं कल जो मेरा कुरान क्लास थी उसमें था कि अहले किताब के साथ प्यार से बात करो। अहले किताब, क्रिश्चियंस अहले किताब हैं, तो उनके साथ बुरा करना तो आप तो फिर कुरान की दुश्मनी कर रहे हो। हमारा दीन हमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत, रहमत, इखलास सिखाता है। हमारे मौलवी हमें काट दो, मार दो, जला दो, जिंदा जला दो, लाशें बिछा दो, ये चलाते हैं। तो ये फर्क जो है ये मुझे बताना है। एंड आई एम नॉट स्केयर्ड अबाउट एनीथिंग। मुझे किसी इंसान से मुझे दुनिया में डर नहीं लगता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़े इदारे में कोई बैठा हुआ हो, या चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो। आई डोंट इवन केयर। एक अल्लाह के आगे झुक जाओ, रात को अपने सारे मामलात करो अल्लाह के हवाले और आराम से मीठी नींद करो। एंड यू गुड। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा क्योंकि इसके बाद राबी पीरज़ादा से मजीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम राबी पीरज़ादा के साथ हैं। अच्छा राबी, बताइएगा बचपन में राबी पीरज़ादा शरारती थी या इनोसेंट थी या बड़े पढ़ाकू बच्ची थी, क्या थी? पढ़ाकू और बेहद शरारती। पढ़ाकू तो बहुत थी। अच्छा, उस वक्त भी एक कॉम्बो था। उफ, और इतनी शरारती थी कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को कहती हूँ कि आपकी हिम्मत है कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। बहुत शरारती थी और पढ़ाकू बहुत थी। और शरारत बचपन की आपको याद आ रही है कोई? इतनी अम्मी ऊपर ही थी, आपको बल्कि मिलवा देना चाहिए था अम्मी से, घर पर ही थी। कोई एक शरारत तो नहीं, बहुत सारी शरारतें। जैसे क्लिफ हैंगर मूवी आई थी, तो मैंने अपनी बहनों के दुपट्टे लेकर ना ऊपर से डिश, आपको पता होगा डिश टीवी हुआ करता था पुराने, ऊपर डिश होती थी, उससे बांध के फिर मैं नीचे उतरी। फिर मुझे ना लड़कों की मस्जिद देखने का बड़ा शौक था, तो मैंने गेटअप किया लड़कों का और अब्बू अम्मी को बताए बगैर अपने मुलाजिम की साइकिल पे जाकर मैंने मस्जिद में लड़कों वाली नमाज पढ़ी थी। अच्छा। हाँ। तो मैं बहुत शरारतें करती थी। कभी कोई ऐसी शरारत की जिससे आपकी पिटाई भी हुई हो? हाँ, पिटाई 2 दफा हुई है और एक दफा तो मैं नारायण का खान में एक ग्लेशियर में घुस गई थी। अच्छा। पूरे स्कूल के सामने मार पड़ी थी अब्बा से, अब्बा का स्कूल था। अच्छा, और दूसरी दफा हुंजा में मैं वो जो माइंस होती है ना रूबी की, उस पर ऊपर चढ़ गई थी और वापस आने का रास्ता नहीं था, फिर पिटाई थी। मुझे ये बताएं कि आप फलाही काम भी कर रही हैं, अपना एक ब्रांड भी चला रही हैं, तो इसके अलावा जब फारिग वक्त आपके पास होता है उस वक्त क्या करते हैं? आपको लगता है मैं बस फारिग वक्त होगा? नहीं, मतलब टीवी कुछ इस तरह, म्यूजिक, क्या कोई देखने का वक्त मिलता है आपको? म्यूजिक मैं सुन लेती हूँ बट मेरा दिल ही नहीं करता, उसकी वजह है कि मैं थ्रू आउट रेसिटेशन मेरे दिमाग में चल रही होती है, तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आई सपोज कि मैं शायरी कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ। पेंटिंग तो खैर वो तो मेरा काम ही है, कैलीग्राफी भी मेरा काम है। फारिग वक्त कम ही होता है, उसमें मैं शायरी करती हूँ। शायरी करती हैं। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो बड़ा यादगार हो, जो आपको बार बार क्लिक होता हो आपके माइंड में, जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये जो लम्हा था ये बड़ा यादगार था? जब मैं पहली दफा उम्रा पे जा रही थी ना, तो लोगों ने ना मुझे कहा खाना काबा को देख के ना बड़ी हैबत आएगी, बड़ा डर सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह का कहर है, फलाना है। सारे जो आपके जिस तरह के लोग होते हैं, सॉरी आप सारे देख भी रहे होंगे, हर एक की अपनी राय है। हाँ, तो मैंने ना, अच्छा मैंने कहीं पे सुना हुआ था कि जो पहली नजर खाना काबा पे पड़े और जो दुआ मांगी जाए ना वो कबूल होती है। तो मैंने ना अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली और मेरी अम्मा मेरा हाथ पकड़ के ले गई और बिल्कुल खाना काबा के सामने ना मैंने दुआ मांगी कि मेरे माँ बाप को ना जन्नत में आला मकाम। हालांकि मैंने अपने लिए कोई दुआ नहीं मांगी, अम्मी अब्बू के लिए मांगी। तो जब मैंने ऐसे आंखें खोल के खाना काबा को फर्स्ट टाइम अपने सामने देखा ना, मैंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी खाना काबा की, मुझे साइज का भी नहीं अंदाजा था कि वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम खाना काबा को सामने देखा तो वो जो मोमेंट थी ना, मुझे आई सपोज के 1.5-2 मिनट के लिए ना आई वाज इन अ ट्रांस, और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने दुआ क्या मांगनी है, और मुझे ये भी याद नहीं रहा था कि मेरा नाम क्या है। ऑनेस्टली मुझे नाम तक भूल गया था। और मैं खाना काबा को देखे गई और ऐसे मुझे लग रहा था जैसे वो मैट्रिक्स फिल्म नहीं देखी, वो शायद फिल्में देख देख कर असर हुआ था कि मेरे ना वो जो
पार्ट्स है ना अंदर से, वो सारे अंदर जा रहे हैं, मूवी की तरह का मुझे फील हुआ। तो फिर बड़ा फिल्मी सा वो सीन था। तो वो जो एक फीलिंग थी ना खाना काबा को देखने की। अच्छा, और मैं एक और मजे की बात बताऊं, इश्क विश्क तो मुझे नहीं हुआ ना, प्यार व्यार पे मैंने कभी बिलीव नहीं किया। वो तो मैंने पूछे ही नहीं, डर गया। अच्छा चलो, नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चले मैं पूछ लेता हूँ, कभी इश्क या मोहब्बत? नहीं, लेकिन वो ना एक वो दिल में होता है ना कि जब आप अपने आशिक को देखते हैं तो वो दिल में कोई हार्ट बीट से स्किप होती है और ऐसे चीजें स्लो हो जाती हैं। नहीं स्लो नहीं, वो ना हार्ट सिंक सा कुछ होता है। आपने कभी प्यार किया? मैंने अच्छा, तो बहुत सारे कई बार किया। हाँ, तो वो जब एकदम से आपका महबूब सामने आता है ना, तो वो दिल में कुछ होता है ना, हार्ट सिंकिंग सी फीलिंग होती है, बिल्कुल तेज हो जाती है। आप यकीन करें, एवरी टाइम आई लुक एट खाना काबा, मेरे हार्ट की फीलिंग ऐसी होती है। तो वो असल प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो फीलिंग होती थी ना, जो मेरी फ्रेंड्स बताया करती थी कि यार वो सामने है ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो जब मैं खाना काबा में रहूं भी, सामने ही होटल अक्सर सामने ही लेती हूँ, वो क्या होता है, हरम फेसिंग होटल है। हरम फेसिंग। तो रहूं भी ना और बार बार भी सामने आए, तो वो जब एकदम से नजर पड़ती है ना, तो मेरे दिल को ना वो प्यार वाली फीलिंग जरूर होती है। तो मुझे प्यार हो गया। और किसी इंसान से नहीं हुआ अभी तक? नहीं, ऐसा ये वाला प्यार नहीं हुआ। वैसे तो सारे इंसानों से प्यार है मुझे, अपने इर्द गिर्द सारे इंसानों से बहुत प्यार है। बच्चों से बहुत प्यार होता है, जो स्कूल के बच्चों से। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो जो आप फीलिंग जो बता रही है किसी इंसान को देख के? अच्छा, मजे की बात ये कि सब इंसानों को पता है कि मुझे प्यार नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। अच्छा? क्योंकि मुझे बचपन से ना लोगों को मुझसे इतना ज्यादा प्यार हो जाता था कि मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। मुझे बचपन से ही पता था कि किसी ना हर एक को मुझसे प्यार हो जाता है, तो वो मुझे नहीं हुआ। और देखें जरा, मुझे प्यार भी हुआ तो कैसे हुआ। अपने जो आपको चाहते हैं लोग या जो आपके फैंस हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? और इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं लोग जो हैं आपसे कोई जेलसी फैक्टर है, उनको क्या मैसेज देंगे? अच्छा, पता है मुझे भी जेलसी फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, मैं आम इंसान हूँ, मैं उसको आप जल जाती हैं लोगों को देख के? हाँ, मैं अगर किसी खातून को देखूंगी यार वो मेरे से अच्छी नमाज पढ़ी है तो जेलसी होती है, या मैं किसी को देखूं कि यार वो मेरे से अच्छा कुरान लिख रही है, मैं जल जाती हूँ। और ये इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। अल्लाह कुरान पाक में ये कहता है कि जब हम तुम्हें जन्नत में भेजेंगे तो तुम्हारे दिल से कीना और हसद निकाल देंगे। उसकी मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे तसल्ली हुई कि कीना और हसद अल्लाह को पता है कि दिल में है। तो अच्छा, मैं भी जल जाती हूँ, लेकिन ये तो नेचर है ना। लेकिन उसके मैं फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, एक तो ये मेरी फीलिंग खत्म कर दे, और दूसरा उस इंसान को मेरे जलन और हसद की वजह से कोई नुकसान ना हो। तो अगर किसी को मुझसे है तो प्लीज आप ये दुआ कर लेंगे आपके जलन या हसद की वजह से मुझे कोई नुकसान ना हो। और मैं मैसेज बस यही दूंगी कि चिल करें, जिंदगी गुजारें। और मौलवियों के ऊपर रहकर, पता है जब मौलवी बहुत ज्यादा डराते हैं ना हमें दीन से, तो हम दीन से भाग जाते हैं। जैसे कोई इंसान जो है अगर वो सिर्फ रमजान में नमाजें पढ़ता है तो उसको कहेंगे हाँ जी उसका ये सीन आ गया, अब तो नमाजें पढ़ेंगे, पूरा साल नमाजें नहीं। ओ भाई, रमजान में तो पढ़ रहा है ना। तो जो इंसान दीन की तरफ एक कदम भी चले ना, उसको सपोर्ट करें, उसके जज ना बने, किसी भी इंसान की जिंदगी का जज ना बने। यू डू नॉट नो कि उसके दिल में क्या है। मेरे सामने कोई बहुत ही वल्गर जीन्स और शर्ट में भी कोई खातून आती हैं तो आई डोंट जज हर बाय हर क्लोथ्स। आई नो दैट अल्लाह विल जज हर विद हर एक्शंस। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो हमारे अगर सोशल मीडिया देखें तो 90% लोग दूसरों को जज कर रहे होते हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ, बाकी अल्लाह को पता है कि इस दौर के लोग जो है ना वो ज्यादातर जहन्नम में ना अपने बुरे कमेंट्स की वजह से भेजे जाएंगे। बुरे कमेंट्स की वजह से? जी, आप बड़ी आपने लोगों को डरा रही हैं कि बुरे कमेंट्स अभी भी आते हैं। बुरे कमेंट्स मुझे तो नहीं आते, आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, एक भी बुरा कमेंट नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि गलत बात नहीं है। राबी भी ज्यादा एक जज्बाती लड़की है या अब वो कुछ अब बेहतर हो रही है? बेहतर है। छोटी छोटी बात पे रो पड़ती हैं या अब आपको स्ट्रॉन्ग? 2020 से पहले मैं अपनी जिंदगी में बचपन के बाद से अपनी नानी के फौत होने पर रोई थी। 2020 के बाद मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता। बदल गई हैं। ठीक। जिस तरह कुछ सवालात जो हैं वो हम सख्त ऑन कैमरा कर जाते हैं, उसी तरह मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टी ये है कि जो बात आप फील करें वो भी कहनी चाहिए। मैं आपसे आज मिल रहा हूँ मीडिया में, तो मैं शायद 1.5 दहाई से हूँ। ज्यादातर मैं पॉलिटिकल शोज करता हूँ। तो आपसे एक मिलने का, एक इंसान जब किसी का कोई नाम सोचता है या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है, तो जब मैं आपका ये सारा मामला मैंने बगौर देखा है, मैं मेरी नजर से सारा गुजरा है, अभी है नहीं, शुरू से मैं फॉलो तो इंसान करता है, तो उसमें ये चीज है कि आपकी पर्सनैलिटी में माशाल्लाह एक चीज है कि अगर आपके बारे में सोचा जाए तो एक इमेज ऐसा आता है कि जिसकी तौबा कबूल हुई हो और जिसपे कमर की करम जो है वो
कर दिया गया हो। तो ये मैं बेसिकली वो जो मेरा सवाल था वो भी यही था कि ये किस तरह ये आपने एक इस तरह एक वाइब्स आती है ना, आप मेरे बारे में सोचें, किसी के बारे में सोचें, किसी हुक्मरान के बारे में सोचें, एक्टर के बारे में सोचें, पॉलिटिशियन के बारे में, तो एक कुछ कंक्लूजन आपके सामने आता है। तो आपके बारे में माशाल्लाह ये एक, और ये मैंने कुछ लोगों से डिस्कस भी किया तो मैंने यही पाया कि कोई नेगेटिव चीज नहीं आ रही किसी के माइंड, ये जो एक पॉजिटिव और ये इस तरह का हो रहा है, ये कैसे हुआ है, उसका फार्मूला बताएं। अब जब मैं जाती हूँ ना मदीना मुनव्वरा या मक्का, तो वहाँ पर मस्जिद कुबा के इमाम के घर अल्लाह ने भेजा, मस्जिद नबवी के इमाम के साथ अल्लाह ने खाने की दावत वगैरह करवाई, जो भी अल्लाह करवाता है, इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। तो वहाँ पर मैंने ना एक चीज़ बड़ी सीखी। वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो मेरे साथ इसी तरह आपके साथ जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे लिए बड़े गिफ्ट्स भी दिए, बट मैं उसको पब्लिसाइज इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं हर चीज़ को बंदा नहीं बेच सकता। तो मैंने शायद उनकी तस्वीरें या उनके खाने या जो कुछ भी है या उनके तहाइफ भी मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैंने कभी उनको, मैं बहुत कम चीज़ें दिखाती हूँ, इसी तरह चैरिटी की भी बहुत कम चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो मैं ना उनके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने, वो बड़े नेक थे, वो बता रहे थे कि उनकी बेगम भी साथ ना बैठी हुई थी कि हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया, हमने कभी ये नहीं किया, मेरी बेगम ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, और सारा कुछ ना उनकी तारीफें कर रहे थे। तो मैं हंस पड़ी, कहते क्या हुआ बेटा, आप क्यों हंस रही हैं? मैंने कहा आपको पता है मेरे पास आपकी बेगम से ज़्यादा नेकियां है। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, अल्लाह भी मुझे लगता है आपकी बेगम ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। कहते कैसे बेटा, आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा आप तो कुरान के हाफिज भी हैं, आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं मोमिनों को पसंद करता हूँ, उनके लिए जन्नत है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कितनी दफ़ा कहा कि मैं तौबा करने वाले को कितना पसंद करता हूँ? कहा काफ़ी दफ़ा। मैंने कहा ज़्यादा कहा कि नहीं कहा? कहते हैं ज़्यादा कहा। मैंने कहा तो मुझे बताएं कि अल्लाह मुझे ज़्यादा पसंद करता है कि उनको करता है? कहते हैं हाँ बेटा आपको पसंद करता है। फिर दूसरी बात मैंने उन्हें कही, मैंने कहा कि आपकी बेगम ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, और वो नेकियां करती हैं, बिल्कुल वो बहुत सारी नेकियां करती होंगी, लेकिन मैंने जितने गुनाह किए, मैं जब स्टेज पे कॉन्सर्ट पे गाती थी तो 20-20 हज़ार लोग सुना करते थे और मिलियंस में उसके व्यूज होते थे, तो मेरे तो गुनाह मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई तौबा करता है तो मैं उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। तो मैंने कहा बताएं मेरी नेकियां ज्यादा हैं कि आपकी बेगम की नेकियां ज्यादा है? तो इतना हंसे, और उसके बाद मुझे खाना काबा का ना गिलाफ का वो भी गिफ्ट किया, एक पीस भी गिफ्ट किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, और ये आपने और जितने लोग अभी भी सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में भी सुनेंगे, उनके लिए है कि हम ना फरिश्ते नहीं बन सकते। मैं अभी भी गुनाह करती हूँ, मैं अभी भी झूठ भी बोल देती हूँ, बिकॉज मुझे जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की। अब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा ना, मैं जब लेट पहुंचूंगी तो आई हैव टू मेक सम इश्यू, मैं तो ये नहीं कह सकती वरना उनको तो नहीं समझ आएगी। तो हम फरिश्ते नहीं बन सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो इस दौर में, क्योंकि देखें हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि अगले दौर में लोग इतने गुनाहगार होंगे तो जन्नत में कोई नहीं जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उस दौर में, जैसे ये वाला दौर है, जो 10% भी दीन को फॉलो कर लेगा ना वो जन्नत में जा सकता है। नहीं पढ़ सकते हो नमाज़ें, जुम्मा तो पढ़ रहे हो ना, और नमाजें नहीं पढ़ रहे हो तो उसमें शर्म आ रही है दिल में, यार जोहर का वक्त गुजर गया नहीं पढ़ी, शर्मिंदा हो रहे हो। वो जो शर्म है ना वो भी बड़ी कीमती है, वो जो एहसास है वो भी बड़ा कीमती है, उस एहसास को मत जाने दो। जो आपके नफ्स की जंग है ना वो आपको बेचैन करती है, और आप कहते हो यार ये बस जंग खत्म हो जाए, यार मुझे बस ख्याल आना खत्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, दैट जंग इज वेरी कीमती फॉर यू, दैट इज योर एसेट। आजकल के दौर में किसी को गुनाह का एहसास हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम 10% भी दीन को फॉलो करते हैं तो हम जन्नत में जा सकते हैं। और देखें, आई एम अ बिजनेस पर्सन एज वेल, मैं बहुत कामयाब बिजनेस चला रही हूँ, मैं तो ज़रा कम ही चला रही हूँ, एक और भाई है मेरे साथ वो ज़रा ज़्यादा हेल्प कर देते हैं उसके अंदर। लेकिन मुझे ये पता है कि एक मजदूर है ना, वो सिर्फ देखेगा रात तक का मेरा खाना हो जाए, दिहाड़ी मैं रात को अपने बच्चों को खाना खा लूँ, मैं कल का नहीं देखेगा। हाँ, एक जो कामयाब बिजनेसमैन है ना वो, बल्कि एक जो दुकानदार है वो अगले 1 साल की प्लानिंग करेगा, कामयाब बिजनेसमैन जो है वो 10 साल की करेगा, एक बिजनेस टाइकून जो है ना वो अगली दहाई की, एक डेकेड की प्लानिंग करके रखता है। तो एक कामयाब बिजनेसमैन वो होता है, हम सब ने मर तो जाना है, और मरने के बाद हमें जाहिर बात है हमारी आखिरत पर ईमान जो है, या ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना। और अल्लाह कुरान पाक में बार बार कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है तुम नहीं उठाए जाओगे, तुम जहां पर भी जाओ, तुम जला दिए जाओ, तुम दफना दिए जाओ, तुम्हारे जो मर्जी हाल हो,
I'll make you again. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلی دفعہ تو بنانا مشکل ہوتا ہے, جیسے ہم کوئی آرٹ کی پہلی دفعہ میں نے کیلیگرافی کی تو مشکل تھی, دوسری دفعہ تو میرا ہاتھ چل پڑا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ پہلی دفعہ بنانا تو مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ تو بندہ بڑا آرام سے بنا لے. تو وہ تو رب ہے, تو جب پہلی دفعہ انسان کو بنایا تو جب دوبارہ اس کو اٹھائے گا تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے, دین میک لانگ ٹرم پلاننگ کہ بھائی میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کروں. تو وہ جو پلاننگ ہے, وہ جو احساس ہے, بس اس کو زندہ رکھیں, کسی کو نقصان نہ دیں. باقی ہم انسان ہیں, ہم میوزک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کا رنگ ٹون میوزک ہے, آپ کی باہر سائیکل والا میوزک کرتا ہے, آپ کی تو جو ڈور بیل بجتی ہے, تو میوزک از ناٹ یور پرابلم. آج کل کے دور میں دا بیسک پرابلم از ہیومینٹی. وی آر لوزنگ ہیومینٹی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ اینی بڈی. یہاں پر اس دن چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے, وہ کہتے تھے کوڑے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کی لاش کو پھینک گیا, دا نیولی بورن. کسی نے بچہ پیدا کیا, بچہ بچی آئی ڈونٹ نو, میری ہمت نہیں دیکھنے کی, اس کو اس نے ٹیشو پیپرز میں لپیٹا اور کوڑے میں پھینک کے چلا گیا. تو وہ میرے فاؤنڈیشن کے بچے اس کو اٹھا کر لے آئے. میرے تو توبہ, میرے تو کہ یار کیوں مار رہے ہو اس کو؟ اب وہ جان جو ہے جس نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے کوشچن, وہ کس کا نقصان کر گیا یا کر گئی؟ تو کسی کا نقصان نہ کرو. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اسی صوبے پہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنے اوپر نا مٹی کا تیل چھڑکا ہوا تھا, ان کو لوگ لے کر آئے, میں اپنے آپ کو جلا دوں گا. آج وہ رزق حلال کما رہے ہیں. بیسک فاؤنڈیشن یا اسکول یا لوگوں کے علاج یا لوگوں کے سارے, وہ سارے راوی پیرزادہ پر چلتے ہیں, کوئی فنڈز نہیں ہے بڑے بڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں شوبز میں ہوتی تھی نا, جب میں سنگنگ کرتی تھی, تو میں نے یہ جتنے بڑے این جی اوز ہیں نا, ان کے کانسرٹس کیے نا. اللہ مجھے معاف کرے, یا میں کسی کی غیبت نہیں کر رہی ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ادھر کیا ہوتا تھا. اور اسی لیے میں عام کسی اسکول وغیرہ کو تو ڈسکاؤنٹ کر دیتی تھی, میں کبھی کسی این جی او کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتی تھی. مجھے پتا ہوتا تھا وہ بدلہ لے رہے ہیں آپ سے. نہیں, بدلہ نہیں لے رہے, میں ان کی طرف فنڈز نہیں مانگ رہی. میں نے آج تک فنڈ ریزر ڈنر نہیں کیا. آئی ہیو سچ اے فالوئنگ. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ جو چیمبر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹیز جو ہوتی ہیں پاکستان میں, امریکہ میں, ہر جگہ پہ, کہ آپ آئیں فنڈ ریزر کریں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ذمہ داری. آپ کو کسی نے پیسے دے دیے, آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیے کہ راوی بہن یہ پیسے ہیں, آپ نے اس کو نا, اب وہ آپ کے 1 لاکھ روپے ہیں نا, مجھے پریشانی پڑی رہے گی کہ یار 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, کہیں کسی ایسے انسان کو نہ چلا جائے, کیونکہ آپ کو تو ثواب مل گیا, آپ کو تو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا, وہ اب میرے اوپر آ گئی. لیکن اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ڈونیشنز کی بھی ضرورت ہے, فنڈز کی بھی ضرورت ہے, تو پھر اب میں نے تھوڑا سا فلیکسیبل کر لیا, تھوڑی سی آپ کو ہمت دکھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پھر نا وہ محدود ہو جاتا ہے ہلکا. لیکن یہ ذمہ داری میں کیوں نہیں لے رہی تھی یا کیوں فنڈ ریزر ابھی بھی نہیں کر رہی ہوں, 2 ریزنز. ایک تو میرے اندر ایگو, ابھی تو آپ نے بڑی کم ایگو دیکھی ہے, میرے اندر جو پرائڈ تھا نا کسی دور میں, وہ صاحب سامنے بیٹھے, ان سے کبھی جا کے تسلی سے پوچھنا راوی کی زیادہ کون تھی. میں آپ ڈرا رہی ہیں مجھے مسلسل. اس وقت نہیں, ابھی تو میں بہت بہت ہمبل ہو گئی ہوں. اچھا, مجھ سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جاتا. یہ بڑا مشکل ہے کہ میں کہوں آپ آ جائیں جی دے دیں, اور یہ جو لوگ مانگتے ہیں نا, اس کے بعد جو اس پیسے کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں, لیکن جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں تو پھر مانگنا تو پڑے گا. نہیں, اچھا ابھی بھی مانگنا نہیں پڑ رہا, جو ہوتا ہے نا وہ فیملی والا. میں نام نہیں لے رہا, ابھی میں لاسٹ ویک میں ایک افطاری پہ تھا اور وہ فنڈ ریزنگ تھی, تو انہوں نے بڑے ٹیکنیکلی اس کو مینج کیا اور تقریباً 1 کروڑ روپیہ وہیں پہ 1 گھنٹے کے اندر لوگوں نے اعلانات بھی کیے, اور وہ سارا یہ بھی ایک. اب آپ کو اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو رابی پیرزادہ صرف اپنی جیب سے کتنے لوگوں کو کر دے گی؟ پھر آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے, چلے بغیر مانگے کہہ لیتے ہیں, بغیر مانگے آپ کہہ رہی ہیں, بغیر مانگے میں سمجھ گیا. اکاؤنٹ نمبر میں دیکھیں, ان چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہی ہیں کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ میں مانگوں گی نہیں, جس نے دینا ہے وہ دے دے. اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا ہے کہ اب آپ نے اللہ سے ضد لگائی ہوئی ہے کہ بغیر. اور میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, اور یہ آج, بلکہ آج میں آپ کو ایک وائس نوٹ بھیج دوں گی آپ کو. ایک صاحب نے کہا کہ آپ میری رابی پیرزادہ سے بات کرا دیں, جتنے آفس میں 15-20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جتنے لوگ ہیں ان کو میں 10-10 ہزار روپے دوں گا, اور جتنے منٹ وہ بات کریں گی وہ 10-10 ہزار روپے ملٹی پلائی ہوں گے. میں ابھی آپ کو وہ وائس نوٹ سنوا دیتی ہوں. اتنی آفر, مطلب آپ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ تو کافی بل ہو جانا. فاؤنڈیشن میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو میڈم کو ڈونیشن دینی ہے, تو وہ فون بھی آ جائے, میں کم جاتی ہوں فاؤنڈیشن میں. غریب کوئی بندہ آ جائے نا, میں ایسے ایسے ملتی ہوں, غریبوں کو میرے سے ملنے میں کوئی ٹینشن نہیں, امیروں کو میں نہیں ملتی ہوں. تو وہ جی ہم نا یہ دیکھیں جی پیسے دکھا رہے ہوتے ہیں, 50 لاکھ روپے ہیں, یہ 80 لاکھ روپے ہیں, لاسٹ ٹائم کسی نے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ دینے تھے.
मैडम के फैन है हम, तो मैडम को देंगे. नहीं तो अगर वो दे दें तो क्या बुराई है? मुझे पैसे दे रहे हैं वो किसको नहीं, दे अगर रहे हैं? आप रिसीव कर लें. नहीं मैं क्यों रिसीव? अच्छा ये भी मेरी भी जिद है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. वही राबी पीज़ादा क्या मसला वहीं पर है. मैं कहती हूँ भाई तुमने अल्लाह को पैसे देने हैं, तुमने सवाब के लिए देने हैं, तुमने, हाँ मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि आपको मैं रिसीविंग उसकी दे दूँ, हमारी फाउंडेशन है. आपने मेरे साथ चाय पी के पैसे देने हैं, 2 पैसे फिर आप अल्लाह को नहीं दे रहे, वो पैसे आप राबी पीज़ादा को दे रहे. देखिए मैं आपको कोई बुजुर्ग तो नहीं होना है, या मैं आपकी तरह कोई लड़का तो नहीं हूँ. अब मैं तो एक अच्छी शक्ल की खातून हूँ, तो मुझे भी पता है कि अगर कोई शख्स मेरे साथ मिलना चाह रहा है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तो होगा ना कि मुझे राबी पीज़ादा अच्छी लगती है, और होता है. नहीं, अगर राबी पीरज़ादा पूरे लाहौर को अच्छी लगती है तो आप बाहर जाना बंद कर दें. नहीं तो आप बाहर जाना बंद कर दें. दुनिया को अच्छी लगती है. हाँ तो फिर ये इन चीजों से फिर आप निकल जाए मेरे ख्याल. मैं आपको ना वो, हाँ बात तो आपकी ठीक है, मैं आपको ना वो वॉइस नोट सुनाती हूँ. ठहरे, चले बिल्कुल. इधर आवाज आ जाए कि इनके नहीं बिल्कुल आएगी जी. आप सुनाएं अपने माइक के पास करके. बड़ी अच्छी ऑफर है. कोई सानू भी कहे अगर 1 मिनट का सानू 200-400 रुपए दे दे. ये सुनिए, आज का है वॉइस नोट. अस्सलाम वालेकुम मैम. और मैम वो कह रहा है कि मैम से मेरी बात करवाएं. आप जितने भी टीम मेंबर हैं मैं सबको 10-10 हजार रुपया देने के लिए अभी तैयार हूँ. मैम 1 मिनट बात करेंगी आपको 10-10 हजार दूंगा, और मैम जितने मिनट में से बात करेंगी आप सबको उतने ही 10-10 हजार नहीं दूंगा. अच्छा ये ना वर्कर है हमारी, अब आपने सुन लिया. मैं समझ गया. और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ऑफिस में ना पैसे. अच्छा अब मुझे खुद बताएं, अब वो नोट लेके बैठे हुए हैं और वगैरह, मैडम के साथ चाय पियेंगे तो हम पैसे देंगे. ओ भाई तू अल्लाह को पैसे देने आया कि तू मुझे पैसे देने के लिए आया? तो मुझे नहीं समझ आती. बाकी आपकी बातें ठीक है, अल्लाह ने जिसके पैसे ठीक लगवाने होंगे ना. देख ले, मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपको अब समझ आ रही है आपको. नहीं आप बिल्कुल देखें, अगर हम किसी के साथ कोई डोनेशन दे रहे हैं और वो ऐसे बैठ के देता है, और देखें हम मेहमान नवाज भी है ना, तो अगर हम किसी को कप ऑफ टी पिला देते हैं और वो डोनेशन दे रहा है, आपकी वजह से ना मैं कोशिश करूंगी अपने आप को बदलने की. चलें ये देख लें, ये राबी पीरज़ादा ने जी ऑन कैमरा कह दिया कि वो मेरी वजह से अपने आप को बदलेंगे. अच्छा ये बताएं राबी पीरज़ादा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा कि आप जो हैं मेहमान कोई आए तो आप गाड़ी लेके बाहर निकल गई. तो चलें वो बाकी लोगों को तो मेहमानों रिश्तेदारों से भी नहीं मिलती हैं आप, ये क्या? पहले नहीं मिलती थी. अब जब मेरे रिश्तेदार आते हैं ना तो मैं उनकी इतनी खिदमत करती हूँ कि वो खुद परेशान हो जाते हैं. लेकिन पहले मैं ऐसी होती थी. आई डिडंट यूज्ड टू मीट. अब आपने मतलब अब रिश्तेदार जो आपके देख रहे हैं करीबी दोस्त, वो आ जाए तो वो आते रहते हैं. अच्छा. और उनको मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं अगर घर पे नहीं भी हूँ, मैं कुरान लिख रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ, मैं जरा थोड़ी सी आइसोलेटेड इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो घर में खाना पी के. अभी भी इंट्रोवर्ट हैं? अच्छा ये भी एक मसला है. पहले नहीं थी, अब हो गई हूँ. पहले इंट्रोवर्ट नहीं थी. पहले नहीं थी. ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे भी काम कर रही हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगता है इंट्रोवर्ट होना, अपने आप में रहना. हाँ. इस पे कभी कुछ शेयर नहीं कहा आपने अपने आप में रहने से मुताल्लिक? नहीं, पता नहीं, इतनी शायरी है. अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको कुछ अपना मैं एक दौर में, आप उतनी देर में शायरी निकालें. मैं भी एक शायर था किसी दौर में. मैं एक दौर में शायरी करता था, तो इसी कैफियत पे मुझे अपना शेर याद आया, आपको सुनाता हूँ. दुनिया को देख भाल के ऐसा हुआ हूँ, मैं बहुत सोच समझ के तन्हा हुआ हूँ. बहुत खूबसूरत. अच्छा मैं अब आपको अब आप अपना सुनाएं. अब यहाँ पे हम शायरी करेंगे. In my family, either they are in America or UK or like totally non-Punjabi people. हम कश्मीरी हैं, किसी को पंजाबी नहीं आती. अगर आप उनके सामने पंजाबी बोलेंगे तो they do understand because ये उर्दू की तरह मिलती है, बट उनको पंजाबी आती नहीं है. तो मैं आपको वो सुनाऊंगी जो मैंने पंजाबी में लिखा, because I love that language, और I am the only person in my family जो कि पंजाबी में बहुत अच्छी बात करते हैं. ठीक है. तो पंजाबी में शायरी करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, but this is one of my poetry. ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छटके दुनिया, ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छटके दुनिया. अल्लाह पूछे बंदे नु तू केड़ी शै नु चुनिया. कोई माड़ा है कोई तगड़ा है, हर बंदा इत्थे वखरा है. कोई माड़ा है कोई तगड़ा है, हर बंदा इत्थे वखरा है. कोई मिलदा है कोई नहीं मिलदा, हर बंदे दा एक नखरा है. हिसाब किताब ते देना पैण की आख्या की सुनिया. ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन नु छटके दुनिया. की मुखलिस यार भी होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ. ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ. ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਣਿਆ. ना दुनिया छड्डे दीन लबे, ना दीन छड्डे. बहुत खूब. So this is something I wrote in Punjabi. और देखें आप, मेरा ख्याल है अपनी फैमिली में पहली हैं जो कैलीग्राफी भी कर रही हैं, और आप पहली हैं जो पंजाबी भी बोल रही हैं. और
اور گانے والی بھی میں پہلی تھی. مشن امپوسیبل پسند ہے آپ کو, جو جو کہیں جی ہے مشکل ہے تو سی وہ پھاڑ لیندے ہو؟ نہیں, بس میں اپنے امی ابو کو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میں ان کو دکھ تو بڑے دیتی ہوں لیکن خوشیاں بھی بڑے دیتی ہوں, اور میں اپنے امی ابو کا بہت خیال رکھتی ہوں. آئی ہیڈ بین اے اسٹار کڈ سنس آئی, میرا خیال ہے فخر ہی کرتے ہوں گے آپ. ہاں الحمدللہ. لیکن ابھی کی بات نہیں ہے, بس شوبز والے ٹائم پہ مجھ سے ناراض رہتے تھے. دے نیور ایکسیپٹڈ مائی شوبز, نیور. لیکن جب میں اسکول میں تھی میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی, پڑھائی میں بہت اچھی تھی. ناظرین, آج مہمان خاص میں ہم نے رابی پیرزادہ سے تفصیلی گفتگو کی, ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان سے سخت اور آسان سوالات کیے. انہوں نے بھی بڑے تحمل سے ہمارے سوالات کے جواب دیے. آئندہ ہفتے مہمان خاص میں مزید کسی اہم اور اچھی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے وقاص گوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.